Assalamu alaikum everyone. Welcome back. So this is the fifth video in the Trading 101 series, and this is the fourth lecture of section 2, which is price action. And this time around we will be looking at something more interesting this time, which is momentum and strength indicators. This is something which people have been asking about कि indicators को कब jump करेंगे, कितना उनको use करेंगे, कितना नहीं करेंगे. Most of the people who know how I trade already know that I'm a price action trader, and मेरी जो dependency indicators के ऊपर होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती in until some cases appear. ठीक है. For me, indicators are simply something which I use, or rather I would like to say, as supplementary information which helps me confirm my analysis, and based on which I take price action decisions. Okay, so let's just jump into it and see what the lecture contents are. Indicators को हम किस तरह यूज़ करेंगे, होते क्या है और उनका पर्पस क्या है, कैलकुलेट किस तरह होते हैं और कब उनको यूज़ नहीं करना. ठीक है, so let's just jump on to the lesson content. Okay, so during this lesson, we will be looking at what the momentum and strength indicators are, how they are calculated, कि इसके पीछे mathematics क्या होती है. Obviously हम लोग equations वगैरह में नहीं जाएंगे, उस depth पे नहीं जाएंगे, calculate किस तरह होता है, because that's something which is not going to add any value to your understanding. But at the same time, we will talk about कि उसकी gist क्या है, कि उसके पीछे rationale क्या है, how they are calculated and why it makes sense. Why to use indicators. Indicators को जिस तरह अगर मैं बार बार कहता हूँ कि हमने यूज़ नहीं करना, तो क्यों कहता हूँ, ठीक है, क्यों उनको हमने यूज़ करना है, कहाँ पे करना है, मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, विच इज़ व्हेन एंड हाउ टू यूज़ दैम. ठीक है, हाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोचेस बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल जैसा हमारा लेसन के अंदर हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स और कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या होते हैं. सो बेसिकली जिस तरह RSI की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें whenever price crosses below 30, it is taken as oversold and as a buy signal, and similarly when it crosses above 70, it is taken as a overbought, or uh, which is something where bull trends are expected to end, और यहाँ से आप short trade लेते हो. ठीक है, this is the contemporary approach, और sorry the orthodox approach, जो एक classical theory है. ठीक है, जिसको हम नहीं करेंगे, जिस पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे किस तरह हम लोगों ने इसको टेस्ट करना है अपने यूज़ के लिए. ठीक है, तो हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने उनको किस तरह यूज़ करना है. वी आर नॉट गोइंग टू बी रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक मेथडोलॉजी, बिकॉज जैसा हमारी मार्केट की अगर हम बात करें PSX की, so it is a completely different market compared to a forex market or a commodity market, and similarly different than even US stock markets. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकती कि इस रेंज से ऊपर जाए तो इस तरह कर दो, नीचे जाए तो इस तरह कर दो. So we'll look at the orthodox approach and we'll see कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों वो सूट नहीं करती हमें, और कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न अप्रोच क्या है, और हमने उसको इंडिकेटर्स को किस तरह यूज़ करना है. दो इसके अंदर रीडिंग्स हैं, which is chapter 13 and 14 of technical analysis explained by Martin Frank. ठीक है, और इसमें chapter 13 you're going to go through completely. इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, ROC वगैरह, ठीक है, which are good information which लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना कि ओ अच्छा ये क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, वी ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव क्वेश्चंस वील एड्रेस दैम, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट एसेंशियल. हमारा फोकस आगे जाके हम जिस तरह देखेंगे कि RSI MACD के ऊपर ज़्यादा है. इसी तरह चैप्टर 14 में यू विल हैव अदर मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल, बट आपने उसमें से RSI और MACD वाला पोर्शन जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरीली पढ़ना है. बाकी चैप्टर आप पढ़े ना पढ़ें, दैट्स ओके, ऑप्शनल, but RSI and MACD is something which you have to read and understand why it makes sense. फिर इसी तरह you will have to watch this video from which is adding divergences to your price action trading strategy. ठीक है, this is the title of the video. This is by Urban Forex. ठीक है, the author or the uh, person who's delivering the seminar is actually Naveen Prithyani. He's one of the most admired traders out there by me. ठीक है,
I consider him as a mentor, and I would highly suggest you to go through his work and try to understand things from his point of view, because that is he's the only person which I've found to be very aligned with my mindset, and I would highly recommend you to go over his other material as well. So let's just start the lesson really quickly and see why we're here. ओके, ड्यूरिंग द पास्ट लेसन्स हम लोगों ने देखा कि प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली, जो हमें सब कुछ बता देती है कि मार्केट प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे आने की चांसेस हैं, कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाई करती है जहाँ से प्राइसेस जो हैं वो रिट्रेस कर सकती हैं। ठीक है, वी ऑल्सो लुक्ड हाउ कि हम गेज किस तरह कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। फॉर एग्जांपल इम्पल्सेस अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं और जो पुल बैक्स हैं वो छोटे हो रहे हैं, दिस शोज द ट्रेंड इज गेटिंग एक्सट्रीमली बुलिश। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि अब जैसे हम लोगों ने ट्रेंड की बात की थी कि अगर हम हायर हाई हाई लो फॉर्मेशंस की अगर वेट करें, फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास सेल सिग्नल कहीं यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस, लेट्स से इस तरह है, ठीक है, इग्नोर दिस। तो अगर इस तरह है तो मेरे पास सेल सिग्नल यहाँ पे आता है, बट आई मिस द गेन फ्रॉम हेयर टू हेयर। जो ये मैं एक लॉन्ग ट्रेड राइड कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँ या यहाँ पे ले लूँ, so that would serve me much better. So this is where price actions tends to fail, but because like it gives you a formation much later, and a lot of times indicator will help you gauge this point much quicker. So in theory, indicators are there to identify tops and similarly bottoms। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ऑफ लेफ्ट राइट होगा, बट एट द सेम टाइम इट विल बी मच बेटर देन प्राइस एक्शन। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे मिल रहा है, इंडिकेटर माइट टेल मी ओवर हियर कि ओके एग्जिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, so this is why we use indicators. In such situations we take use of additional tools which are widely known as indicators। अभी हम लोग देख लेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा दोबारा कि किस हमने एक्सेस करना है, बट एट द सेम टाइम चार्टिंग वीडियो में हम लोग इसको कर चुके हैं एक्सप्लेन, और इसी तरह EMAs वाली वीडियो में भी we've gone through this multiple times as well। So you must always remember dependence on indicators will only be to the extent as warnings हैं। ठीक है, this is something which I will stress again and again throughout this lecture, that is कि indicators के ऊपर completely depend नहीं करना। ये नहीं करना कि प्राइस एक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है, RSI इधर चला गया तो मैं सेल कर दूँ, इधर चला गया तो मैं बाय कर लूँ, डोंट डू दिस। ठीक है, we'll look at how this can be suicidal as well, and price as हमेशा 100% of the time price will be the source of information। indicators हमारे लिए only confirmation tool की तरह act करेंगे। Okay, so what are momentum and strength indicators? Indicators are simply numeric values which are calculated from either price or volume। ठीक है, अब for example, how do I put this? For example, जिस तरह speed है, speed is a numeric value or a function of distance over time। ठीक है, indicator इसी तरह या तो प्राइस का या फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का एक सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हमें आउटकम देता है। ठीक है, जिस तरह अगर हम RSI की बात करें तो RSI tells us what the average gain, for example RSI 10 tells us what the average gains and losses over the past 10 periods have been। if they have consistently been gains and higher, the RSI is likely to reach a point at 100, अगर वो 10 days straight अगर गेन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर लॉसेज होते हैं इट विल टेल अस 0 for 10 consecutive days। इसी तरह देयर आर इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल OBV, दिस इज अ वॉल्यूम इंडिकेटर, ये इसी तरह वॉल्यूम की वैल्यू से कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्राइस के इसी तरह मैकडी अगर देखूँ, मूविंग एवरेजेस देखूँ, EMAs देखूँ, ऑल ऑफ देम आर कैलकुलेटेड फ्रॉम प्राइस। सो इंडिकेटर्स एट द एंड ऑफ द डे आर नथिंग बट वैल्यूज ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्या मतलब certain values which add help us interpret the information much better। example इसकी हम लोग एक नीचे देखते हैं quickly। when we look at price and volume they show us single point in time values, for example a day, hour, week or month। इसी तरह अगर for example let's say हमारे पास candlesticks बन रही हैं and prices are going up and all of a sudden we have a big green candle। ठीक है, let's say although hypocritical सी बात है कि मेरे पास red pointer है but
consider this to be a green candle. Our focus will be on this. Oh my god, this is a huge candle. ठीक है, तो प्राइस हमें although हमारे पास हिस्ट्री आ रही होती है, बट एट द सेम टाइम हमें एक वैल्यू नज़र आ रही होती है कि आज अपर लॉक लगा, प्राइस 5% लेट्स से ऊपर गई. लेट्स जस्ट मेक दिस अ फुल बॉडी कैंडल. ओके, प्राइसेस ऊपर गई, अपर लॉक लगा, वी आर ओनली सीइंग दिस. ठीक है, ऑल्दो ये भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम उसको उससे इंटरप्रेट नहीं करेंगे. 2% गेन्स, 3% गेन्स, 5% गेन्स, दिस इज व्हाट वी सी. बट व्हेन वी यूज इंडिकेटर्स, इट गिव्स अस स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पीरियड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से RSI को अगर हम देखें 10 डे को, तो हमें 10 डे की एवरेज शो कर रहा होता है कि प्राइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं एंड 10 डे गेन्स हुए हैं. ठीक है, सो इंडिकेटर्स हेल्प अस विजुअली अंडरस्टैंड द ट्रेंड बेटर. अगर हम नॉर्मली देख रहे हो तो मे बी हमें जिस तरह बड़ी दफ़ा होता है कि एक अनसस्टेनेबल मूव होता है, हमें नज़र नहीं आता. ठीक है, इंडिकेटर्स हमें इन सिचुएशंस में हेल्प करते हैं उन अनआइडेंटिफाइबल मूव्स को आइडेंटिफाई करने में. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, दिस विल बिकम मच मोर क्लियर. Okay, so we tend to make trading decisions based on visual analysis of price and volume spanning across multiple periods, for example, 10 hours, days, or weeks. However, sometimes reducing accurate analysis out of visual analysis becomes hard. अच्छा, जब ऐसा होने लग जाता है तब हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, अगर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो हम अक्सर ट्रैप हो जाते हैं उसमें. बट अगर RSI मूव नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड वी गेट आउट ऑफ. Okay, so sometimes indicators are necessary to help you see if the move that is being made is sustainable or not. You can get confused with one big red or green candle, but indicators will tell you if that makes sense or not. ठीक है, ये extreme tops और bottoms के लिए है वैसा. That is when indicators come into play. Indicators present us with summary of price and volume data, which can help us gauge strength and momentum of price action and allow us to make better trading decisions. Basically, simply put, अगर हम एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, एक बैट्समैन की बात कर रहे हो, ठीक है, और हमें पता हो कि वो नॉर्मली जो है लेट्स से उसका स्ट्राइक रेट 50 है, लेट्स से विद समवन लाइक मिसबा, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज बैटिंग एट 200 स्ट्राइक रेट. ठीक है, मिसबा की बात नहीं करते, ही वाज अ गुड प्लेयर, कोई भी एक बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 50 है. ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स बैटिंग एट 200 स्ट्राइक रेट, मतलब ही स्कोरिंग 2 runs of each ball. हालांकि he was scoring 1 run of 2 balls before. When that starts to happen, we know that something is out of order. Why? Because that is his natural playing style, and today he isn't playing naturally. Either he will be having a breakthrough, a crazy innings, or he might get out too soon. तो इसी तरह जो indicators हैं, they help us see if the price movements are either breaking out or might not be sustainable. ठीक है, so we have to keep check of this कि indicators को हम क्यों use कर रहे हैं. Indicators are only confirmation tools. Hold on a second, let me get some water. Okay, the two most popular and powerful indicators across the trading community are RSI and MACD. ठीक है, these are two indicators जो even सबसे basic traders होते हैं, जो technical analysis में enter होते हैं, they are the first, basically this is the first thing all of them find out. ठीक है, जैसा अभी भी हम इस कोर्स में अगर देखें तो this is the first thing I am teaching. Why? Because this is something which is common across all platforms. किसी भी market में ये apply होते हैं, ठीक है, use होते हैं और एक refined tools हैं. So RSI and MACD. RSI is relevant strength index. This shows us how prices are moving. ठीक है, basically formula में मैं नहीं जाऊँगा. When you go through chapter number 13 and 14, you will understand the formula if that makes sense, although it doesn't really need to make sense. But let's just put it this way: if there are 10 days and on average during all of those days you are making gains, okay, and the prices are the RSI is likely to move towards 100, ठीक है, जो उसकी maximum value है. इसी तरह अगर you have 10 days
RSI 10 की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह you have 10 days where you are making consecutive losses, prices will sorry RSI will approach 0, ठीक है। So this gives us a summary of the gains and losses from the past, let's say 10 or 14 days. 14 जो है वो स्टैंडर्ड है जो हम यूज करते हैं और करेंगे। MACD on the other hand is something which is an outcome of मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अब जिस तरह अब लेट्स से हमारे पास 10 डे मूविंग एवरेज है और इसी तरह 20 डे मूविंग एवरेज है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा मैकडी है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से 10 एंड 20 EMA इज लेट्स से 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैकडी, ठीक है। मैकडी लाइन इसी तरह उससे ओवर द टाइम जिस तरह ये डिस्टेंस यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे 1.5 पे 1.7 1.2 इवेंचुअली, तो ये मैकडी की लाइन इस तरह बन जाएगी जो लेट्स से 1 से लेके रेंज करेगी 2 तक फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड इसी तरह हमारे पास इसकी एक सिग्नल लाइन होती है जो हमें EMA देती है इस डिफरेंस, ठीक है। सो इट्स गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मैथ, बट दो EMAs का जो गैप होता है उससे मैकडी लाइन प्लॉट होती है और उसकी EMA होती है जो सिग्नल लाइन होती है। जब भी गैप्स EMA इस तरह आने लग जाए, फॉर एग्जांपल दिस टेल्स अस दैट द गैप the average gap of the past x number of days is getting much more than the current gap, then this becomes a significant number to watch out for, and this is a buy call tech like in the orthodox book, ठीक है। अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना, this is just to give you a highlight of the math, but like it's not important to know. RSI is simply an oscillator which evaluates the strength of a price move and communicates to us whether it is sustainable or not, ठीक है। This is what you need to know कि RSI हमें शो करता है कि प्राइसेस के जो अंदर गेन्स या लॉसेस आ रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने 10 डेज की बात की, फॉर एग्जांपल इफ अ शेयर इज हैविंग अ 10-day विनिंग स्ट्रीक, RSI will tell us कि how sustainable is that. इसी तरह if it is having a 10-day losing streak, it will tell us how sustainable is that. Not just 10, मतलब it can be any number, like एक दिन lose करे एक दिन gain करे, let's say 10 days and 10 days when it's gaining 5 days and it's losing 5 days, but it wins more when it's gaining and losing less when it's losing, then RSI is likely to tend to go up and that will show us that overall momentum is bullish, ठीक है। इसी तरह मैकडी की अगर हम बात करें तो इट इज एन इंडिकेटर व्हिच शोज अस अ रिलेशनशिप ऑफ मूविंग एवरेजेस of price and whether the move is going to strengthen or weaken, gaining strength or weakening, ठीक है। And the orthodox way of using MACD is to trade crossovers. अभी हम इसको देखेंगे तो this would make more sense, but this is something which I was talking about कि जब सिग्नल लाइन MACD लाइन को क्रॉस कर ले तो तब हमारे पास एक बाइंग कॉल होती है ऑर्थोडॉक्स अप्रोच में। One thing you have to remember is that price and indicators must always move in harmony. By this I mean कि similar direction में trade होने चाहिए। जब भी नहीं होंगे, ठीक है, you will have a high probability trade on the way. जब भी नहीं होंगे you have to keep an eye of that कि जब भी ना हो you have to find a trade, ठीक है। अब फिर इसको हम बोलते क्या है in easy words, divergences. Divergences are simply, let's say prices are making higher highs but RSI let's say makes a lower high, so this is a divergence, ठीक है। This shows that the current move कि यहाँ पे जो लेट्स ये डाइवर्जेंस क्रिएट क्यों होती है हम इसकी भी बात कर लेते हैं, बट दिस करंट मूव इज टू क्विक टू बी सस्टेनेबल, ठीक है। दिस इज व्हाट RSI टेल्स मी। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 10-day लूजिंग स्ट्रीक and in 2 days prices go up crazy, ठीक है। RSI tells me hold on, 8 दिन से prices गिर रही हैं, average loss ये है and like 2 days are increasing, this does not make sense, don't buy it, ठीक है। तो RSI जब इस तरह करता है तो तब मेरे पास डाइवर्जेंस आती है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तक रैप अप है थोड़ा सा। ओके सो ओहो व्हाई इज इट
ओके, अगर मैं यहाँ पे प्राइसेस को देखूँ तो हम लोगों ने क्या बोला कि प्राइस एक्शन को हमने हमेशा ट्रेड करना है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे आके मेरे पास पहला वार्निंग आया, ठीक है। हायर लो नहीं बना इस दफा, प्राइसेस नीचे चली गई। अब जब मेरे पास एक और नया वो आएगा, लेट्स से हायर सॉरी लोअर हाई आएगा, तो दिस विल बी माय सेल कॉल। तो अगर मैं प्राइस एक्शन की बेसिस पे देखूँ तो मुझे सेल पे एग्जिट मिल रहा है यहाँ पे 50,350 में, ठीक है। प्राइसेस गई थी 53,000, so that is 3,000 points, that is a lot of range, ठीक है, which I am missing out on because of trading price action. सिमिलरली हमने जो दूसरे लेसन में पढ़ा उसमें एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 4 5 ट्रेंड लाइन पे मेरे पास सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 51,600 पे, somewhere around here, and let's just hide our trend line for a second, ठीक है। अब मैं अगर इंडिकेटर्स की बेसिस पे देखूँ, अब मसला क्या आ रहा है, दोनों चीज़ें मुझे बता तो रही हैं कि एग्जिट कब लेना है, ठीक है, बट लेट बता रही हैं। प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है 50,000 पे आके, ये भी मैं प्रॉब्ली कैच नहीं कर सकूँगा, जब प्राइसिंग नीचे जाना शुरू होंगी तब मेरे पास हाई होगा एक लोअर, और यहाँ पे आके मेरे पास सेल ऑफ पॉइंट रफली बनेगा, तो दैट इज समथिंग 50,000 से नीचे। बट व्हेन प्राइसेस आर डिक्रीजिंग हियर, पहला सिग्नल मैं ये भी ले सकता हूँ 50,000, बट इफ आई डोंट, आई विल प्रॉब्ली एंड अप सेलिंग ड्यूरिंग दिस पैनिक व्हिच आई डोंट वांट टू, ठीक है। Hence, I need to have a system in place. And since we have done trend lines, our focus will be on trend lines and not price action as much. ठीक है, price action तो obviously focus होगा, but at the same time, whichever happens first will be psychology है यहाँ पे कि for example जिस तरह गाड़ी की वारंटी होती है कि either two years or like 50,000 kilometers, whatever happens first. Similarly, if you have a breach of price action or you have a breach of trend line, whatever happens first you exit the trade. तो यहाँ पे देखो मेरे पास exit बन रहा है roughly 51,000 पे, but that's still 2,000 points away. अगर मैं थोड़ा सा पहले exit लेना चाहूँ तो is there a possibility, let's say हमने EMAs की, तो let's try if EMAs work. EMA, this is not something which is reactive enough, तो मैं इसको नहीं लूँगा. Let's just test it. Exit. ठीक है, रफली 20 EMA बनती है, उसको भी देखो तो वो यहाँ पे सिग्नल दे रही है मेरे पास, which is again late, so that is what I don't want. So what is the solution to this? So if I look at indicators, RSI को, अब जैसे हमने डाइवर्जेंसेस की बात की, प्राइसेस यहाँ पे हायर हाई बना रही हैं, ठीक है, बट इफ आई लुक एट लेट्स से RSI, what is it doing? It's making a lower high. So this is telling me that during the past days जो gain falls आए हैं, if I look at it 1 2 3 4 4 bad sessions and prices went up in 3, ठीक है, so this created a divergence, ठीक है. This is what divergence is, that during when prices are moving, are the moves sustainable or not based on the previous days past previous periods past price action. सो RSI टेल्स मी यहाँ पे जब टॉप बनता है, होल्ड ऑन, यहाँ पे जो टॉप बना है वो तो ठीक है, बट RSI सेज इट्स नॉट फेवरेबल इनफ. एंड अब जिस तरह अगले लेसन में हम कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ट्वीजर टॉप और एक इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेशन है, ठीक है, और डोजी भी है, डोजी के बाद गैप डाउन भी है, सो दैट इज अ मल्टीपल लेवल की इंफॉर्मेशन ओवर हियर टू एग्जिट. अगर ये मुझे मिल जाए डाइवर्जेंस के साथ, दैट इज अ क्लियर कट सेल कॉल, सही है. अगर मैं अब उसकी बात करूँ प्राइस एक्शन की, इट्स गिविंग इट लेट, ट्रेंड लाइन गिविंग इट लेट, RSI गिविंग इट मच अर्लियर. सिमिलरली मैकडी पे अभी हम देखते हैं इसको ऑपरेट किस तरह करना है, बट यहाँ पे देखने मेरे पास एक स्ट्रेंथ लूज होने का एक सिग्नल नजर आ रहा है कि एक वीकनेस आ रही है, एंड यहाँ पे आके क्रॉस ओवर आ रहा है, ठीक है. अब मैं इसको देखूँ तो ये इस कैंडल पे रफली मुझे जब ये क्लोज होती है तो ये मुझे दे देता है कि ओके गेट आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है. रफली यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिल जाता है, ठीक है. सो इंडिकेटर्स हेल्प मी गेट आउट ऑफ अ ट्रेड मच क्विकर. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, when prices are coming down, lower high, lower low, lower high, lower low, lower still lower high, higher low, रफली यहाँ पे जाके मुझे सिग्नल मिल रहा है और उसके बाद ट्रेंड वैसे ही एंड हो गया, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ तो अगेन कैंडल स्टिक जब पढ़ेंगे तो अगेन वी हैव
यहाँ पे ट्वीजर बॉटम आ रहा है मेरे पास, और एक दिस इज या हैमर एंड डोजी स्टार। ठीक है, जब भी ये फॉर्मेशन आती हैं तो मेरे पास एक वो होती है, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन मिल जाती है। बट लेट्स सी व्हाट इंडिकेटर्स आर डूइंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगेन आई हैव लोअर लो बट प्राइसेस आर मेकिंग अ लोअर हाई, RSI is making a lower high, सॉरी हायर लो। ठीक है, जब भी ये डाइवर्जेंस आई अगेन। इसी तरह अगर मैं मैकडी पे देखूं तो मेरे पास मैकडी पे भी डाइवर्जेंस आ गई ऑलमोस्ट। ठीक है, बिकॉज इट्स फ्लैट, और ये यहाँ पे मुझे सिग्नल दे रहा है बाय। ठीक है, ऑल्दो RSI यहाँ पे दे रहा है, मैकडी मुझे यहाँ पे दे रहा है। व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन लाइन आई विल प्रोबब्ली एंटर समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, इसी तरह एग्जिट समवेयर अराउंड। जब हम इस पे RSI अगले उस पे देखते हैं लेसन में, अगली स्लाइड्स पे आएंगे जब रेंजेस की बात करेंगे, तो आई विल हैव अ मच अर्लियर एग्जिट। बट अगर मैं उस पे भी रहता हूँ, मैकडी पे भी रहता हूँ, आई गेट एन एग्जिट ओवर हियर। सही है। So this is what indicators help us do. Generally, in situations when price action or trend lines are not giving me a significant enough answer, then I will likely tend to follow indicator. ठीक है। ओके, अब हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन कि ये होते क्या हैं और इनकी जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, वो क्या होती है। उसके बाद हम इसको चार्ट्स पे देख लेते हैं कि इनको ऑपरेट किस तरह करते हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से। फिर उसके बाद हम उसकी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं एंड सी व्हाट द मॉडर्न अप्रोच इज। Okay, the most common practice to use RSI is to take trades when the price is oversold or overbought. ठीक है, let me just grab a pen. ठीक है, when the price is oversold, you want to place a buy trade, or when the price is too overbought, this is where you want to place a short trade. अब simply put, RSI दो ranges में trade होता है। ठीक है, एक होती है 100, लोएस्ट वैल्यू होती है 0। जनरली जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है वो कहती है कि जब भी प्राइसेस 70 से ऊपर चली जाएं तो दे आर अनलाइकली टू सस्टेन एंड कम बैक। ठीक है, इसी तरह व्हेन दे गो बिलो 30 they are unlikely to sustain and come back. So the orthodox approach simply tells me कि जब भी prices 30 से नीचे जाएं, place a buy trade and prices are likely to return and you will make money. Similarly, when they're trading above 70, place a short trade and prices are likely to return and you will make money. ठीक है, simply put, this is the psychology behind it and we'll see on the charts if it works or not and कितनी उसकी frequency है signal की. Okay, so when RSI crosses below 30, it is classified as overbought. Below, it's called oversold. Bad, oversold and overbought. ठीक है, ये उल्टे लिखे मैं, ये मैं भी presentation share करते हुए fix कर दूंगा. But when it is below 30, it is classified as oversold, from where it is likely to reverse upwards. When RSI crosses above 70, it is classified as overbought, from where it is likely to reverse downwards. Okay, so this is the orthodox approach and हम लोग मसले पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद एक सेकेंड मैकडी को भी देख लेते हैं, एक साथ ही करते हैं, it's gonna be better if you do it एक साथ. Similarly, MACD tells me when MACD is ranging above 1, trend is considered. इसको बल्कि अलग अलग करते हैं. This will get you more confused. Let's just do it one by one. Okay, let's hide our MACD for a second. Okay, so simply put, मुझे जो orthodox theory है वो ये कहती है कि prices जब भी 70 से ऊपर चली जाएं तो वो overbought हो जाती हैं. ठीक है, और जब 30 से नीचे आ जाएं तो वो oversold हो जाती हैं. ऊपर जाएं तो सेल ट्रेड है. ठीक है, यू हैव टू प्लेस अ शॉर्ट एंड जब नीचे चली जाती हैं तो यू हैव टू प्लेस अ बाय. ओके, सो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 70 से ऊपर प्राइसेस क्रॉस करती हैं, डेफिनेटली वेरी ट्रू. लेट्स जस्ट क्लियर आवर चार्ट एंड वर्क फ्रॉम द स्टार्ट. ओके, so this is where I place my short trade. Let's say I somehow capture the peak. ठीक है, मैं लेट्स से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ शॉर्ट बिकॉज RSI 70 से ऊपर चला गया. ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुझे असूलन यहाँ पे कर देना चाहिए. एक सेकेंड, RSI crosses 70 over here, so I place a trade over here. Prices go up and they come back down and they're starting to come back down and okay, that's a good signal.
आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। जब यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू होती हैं, लेट्स से अगला चार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यू विल प्रॉब्ली बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन प्राइसेस रिवर्स। ठीक है, जैसे यहाँ से ऊपर जाती हैं, नॉट ओनली विल दे स्टॉप यू आउट बट टेक यू इन a huge loss अगर you're holding the position. So this is what the orthodox theory tells me, that when prices go up at 70 you short sell, but they don't tell me what to hold. Eventually the prices do come down, but for the moment they go back up and you could have placed a trade based on divergence much higher, ठीक है, on a much better rate. इसी तरह अगर मैं नीचे देखूं तो अगेन मेरे पास यहाँ पे सिग्नल आता है बाय का somewhere around here, and let's say somehow I managed to capture it here because like a bullish candle मेरे पास generate होती है, I buy it, it goes up, okay, I feel confident, but it comes down, goes back down. Eventually it does go up, but at the same time I could have gotten a much better price based on divergences over here. ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी तो मुझे ये कह रही है कि 30 और 70 को यूज करो. लेट्स सी इफ वी हैव मोर सिग्नल्स अहेड. अगेन यहाँ पे मेरे पास एक सिग्नल है, तो अगर मैं इधर पे बाय कर लूँ, लेट्स से समहाउ आई मैनेज टू बाय ओवर हियर, ऑल्दो पॉसिबल नहीं होगा, प्राइसेस क्या करती हैं, थोड़ी सी ऊपर जाती हैं and all of a sudden they come back. ठीक है, then they go back up and they come back down as well. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो clearly the 30-70 approach is failing very very bad. और यहाँ पे देखें तो again 70 पे you sell over here, let's say दो दफ़ा आती हैं तो you short sell over here, then you short sell over here again. Prices do come back down, but they really come back below your buying area, your shorting area. ठीक है, let's say you somehow manage to pick this peak and you short sell over here, prices go down, you feel confident, prices come back up and this time around they go much higher. ठीक है, and probably जब prices वापस ऊपर आना शुरू होंगे you'll panic and sell, but at the same time RSI is making a divergence. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, so अगर मैं 70 वाली अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, that is shit. ठीक है, I don't want to do that because that is very misleading. Rather I would focus more on divergences which are giving me much higher, much better trades. ठीक है, divergences पे बेस करूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलता है, नॉर्मली मैं 70 वाले रूल पे बेस करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है. इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं, अगेन यहाँ पे दैट्स अ गुड ट्रेड. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लेस कर देता हूँ, लेट्स से 70 से ऊपर वाली लॉजिक पे करता हूँ, तो लेट्स से समवेयर अराउंड हियर. अच्छा, अब एक प्रॉब्लम होती है बहुत सारे जो ट्रेडर्स या टीचर्स आपको एग्जांपल देंगे, वो जब आपको ये दिखाएंगे आपको कहेंगे ओ ये देखो आरएसआई यहाँ पे पीक हुआ था और हमने शॉर्ट प्लेस कर दिया, देखो हमने यहाँ से शॉर्ट प्लेस किया, प्राइसेस जो हैं वो इतनी नीचे आ गए थे. ठीक है, but at the same time what they don't tell you is that when the chart is forming and prices cross above 70 this level, ठीक है, 70 पे यहाँ पे क्रॉस हुआ है रफली, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ या यहाँ पे करूँ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना. अभी मेरे पास तो प्राइसेस उस टाइम यहाँ की होंगी, तो अगर मैं ये देख के करता हूँ यहाँ पे, तो आई प्रॉब्ली एंड अप गेटिंग ट्रैप्ड फॉर अ मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ एज प्राइसेस वर डेवलपिंग, द नेक्स्ट टाइम अराउंड प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट भी ले ली थी. ठीक है, तो अगर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी फट जाती है ना, लाइक सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट अगर मैं फॉलो कर रहा होता इस चीज़ को तो इन रियल टाइम दैट वुड हैव गिवन मी a hard time. ठीक है, so as a rule of thumb, although I personally hate to trade this and I would never recommend you to trade this, but even if you are placing your bets based on oversold or overbought, wait for the price to hit that zone whatever it is above 70 and come below 70. ठीक है, फिर अपना ट्रेड प्लेस करो. एक ये वाली अपॉर्चुनिटी होगी, स्टॉप लॉस लगेगा, हिट हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे, that will be a successful trade. सिमिलरली यहाँ पे प्लेस करने के बजाय प्राइसेस ऊपर चली गई, वापस आना शुरू होती है, यहाँ पे आके 70 से नीचे क्रॉस होती हैं, तो यू टेक योर ट्रेड ओवर हेयर. ठीक है, रफली ओवर हेयर, तो यहाँ पे यू गेट अ मच बेटर रेट एंड द प्राइसेस कीप फॉलिंग आफ्टरवर्ड्स. अगेन इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई हैव अनदर एग्जांपल जहाँ पे 70 से प्राइस 30 से नीचे जाती है प्राइस, तो रिवर्स हो रही है, बट एट द सेम टाइम इट्स गेटिंग अंडर 30 फ्रॉम हेयर and it's staying under 30 till 41,000
ठीक है, तो दैट इज अराउंड 3000 पॉइंट्स जब से वो ओवरसोल्ड है, उसके बाद ऊपर गई है. So in theory, what I'm trying to tell you is that this 70-30 approach will ruin your trading. ठीक है, don't fall for this crap. लाइक एक बहुत बड़ा नोशन है, ओवरसोल्ड हो गई, ओवरबॉट हो गई, बुलशिट है. ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना. देखूं तो इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इट डज वर्क एज वेल. अगर मैं ये वाला इंस्टेंस देखूं तो परफेक्ट एक बॉटम बना है, 30 से नीचे गया है प्राइस और था करके शूट. ठीक है, समटाइम्स इट विल वर्क वेरी परफेक्टली बट लॉट ऑफ टाइम्स इट वॉन्ट. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को जब हम देखेंगे दैट विल मेक मच मोर सेंस. Okay, so when MACD, now let's just look at this example of RSI and MACD once again, और फिर पीछे जाते हैं वापस. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ATRL की एग्जांपल है, हाईली ट्रेडेड. MACD को नहीं देखो अभी, यहाँ पे RSI पे फोकस करो. बॉटम लगा, RSI वाज अंडर 380, स्टार्ट गोइंग बैक अप. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखूँ, सेम स्टोरी रिपीटेड, यहाँ पे सेम स्टोरी बीइंग रिपीटेड. ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू is to make sure when you are using even oversold or bought, then you have some sort of confirmation tactic as well. Either you wait for this to happen or you have your EMAs placed. अगर let's say price यहाँ से bounce करती है, यहाँ से अगर reverse करती है, till the time it's not breaking your support levels, don't trade it. ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे देखो जब तक ब्रेक नहीं कर रही मैं ट्रेड ना लूँ कि अच्छा सही है RSI ने कह दिया, बट जब तक वो मेरी सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करती मैं नहीं ट्रेड ले रहा. ठीक है, तो दैट शुड बी द एटीट्यूड यू हैव टू गो इन विद. ठीक है, जिस तरह उसको ट्रेड करना है कि यू हैव टू वेट फॉर a support or a resistance to be violated after your indicator is giving you a signal. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पे प्रीच करूँगा वो ये है कि लेट्स से यहाँ पे आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, you say oh my support is breaking, what is my indicator telling me? It went to oversold and now it's coming back, and since my support is broken, then taking a short trade based on the fact that support is breaking and is being supported by the indicator, it does make sense. ठीक है, so indicator को इस तरह यूज करना है as a confirmation. अभी full slides end पे करेंगे, लेकिन just to give you a highlight. Okay, MACD थोड़ा सा confusing indicator है, but this is a very good indicator, so I want you to make sure you understand it. And इसकी जो modern approach है, once you really get your grip good on it, it's one of a highly profitable indicator. So let's see ये होता किस तरह. Okay, when the अब ये थोड़ा सा confusing है, just go through it. Once I'll go on to the trading screen, I'll explain कि किस तरह होता है. When MACD is ranging above 1, ठीक है, वो 1 बेसिकली MACD की एक वैल्यू होती है, एक मिडिल लाइन होती है, above 1 नहीं, above 0. When MACD is trading above 0, ठीक है, 0 लाइन होती है, अगर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है तो दिस इज अ बुलिश साइन ओवरऑल. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. एंड व्हेन यहाँ पे दो लाइंस होंगी, एक सिग्नल लाइन होगी, एक मैकडी लाइन होगी. इसी तरह यहाँ पे एक सिग्नल लाइन, एक मैकडी लाइन. अगर वो 0 से नीचे ट्रेड कर रही है, दिस इज अ बेरिश साइन. आगे उसको इंटरप्रेट किस तरह करना है अब वो देखते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन मैकडी इज रेंजिंग बिलो 0, इट इज, एंड व्हेन, अच्छा दोबारा, when MACD is ranging above 0, इस तरह, and the signal line crosses MACD line from below, it is a buy call. ठीक है, ये 0 से ऊपर है तो बुलिश टेरिटरी में है. अब यहाँ पे अगर MACD लाइन यूं जा रही है, अभी हम देख लेते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू जस्ट ऑफ इट, और सिग्नल लाइन उसको नीचे से क्रॉस करती है. ठीक है, व्हाट इज दिस टेलिंग मी? सिग्नल लाइन, MACD लाइन क्या थी? डिफरेंसेस. EMA क्या शो करिए? दैट differences over the time are increasing significantly. Correct? And when this is happening, this is a good buy sign. ठीक है, जब प्राइसेस जब MACD इस तरह करने लग जाए 0 से above, तो in orthodox books this is a buy signal. ठीक है, right over here it's a buy signal. Similarly, जब अगर प्राइसेस 0 से नीचे ट्रेड कर रही हैं, और सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और इसी तरह जब सिग्नल लाइन वापस MACD लाइन को क्रॉस करती है तो दिस इज अ क्लोज लॉन्ग सिग्नल. इसी तरह अगर नीचे की तरफ देखें, सिग्नल लाइन चल रही है और MACD लाइन चल रही है, एंड सॉरी ये सिग्नल लाइन है, ये MACD लाइन है.
ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन सिग्नल लाइन क्रॉस करती है मैकडी लाइन को. सो दिस इज अ शॉर्ट कॉल दैट द ट्रेंड इज बेरिश एंड यू मे इंटर नाउ. ये वाली सिचुएशन. ठीक है, when this happens you take a short trade, and similarly when signal line crosses from below the MACD line, this is a close short call. ठीक है, a little confusing but let's just go to the charts and see किसका ऑपरेट करते हैं. Okay, so now let's just take our horizontal line tool. अच्छा, ये जीरो को देखें, this is a zero line, and let's just draw our line over here. Okay, so basically what MACD is telling me is that if prices are trading above zero, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो I have a very large chunk of prices which are above zero. ठीक है, and यहाँ पे अगर हम इसकी settings में जाएं तो we can identify कौन सी line कौन सी है. Okay, fast length is normally is just your EMA. ठीक है, slow length is again your EMA, जिनके बीच में हम differences देख रहे होंगे. Fast length is जो shorter EMA, slow length is the longer EMA, and this is the EMA which you want to find the difference between. ठीक है, standard 12 और 26 use होता है. You can use anything which you want, like you can use 10 and 20, and यहाँ पे signal line पे you can put 5, whatever you want to put. ठीक है, एक सेकेंड, अभी हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे विच इज 12, 26 एंड 9, एंड वी प्रेस ओके. अच्छा, तो अगर हम अपनी थ्योरी को देखें तो व्हाट डज इट टेल मी? इट टेल्स मी सिग्नल लाइन, हमारे कलर्स देख लो, कलर्स एक दफ़ा देख लो ताकि क्लियर हो जाए. सिग्नल लाइन लेट्स मेक इट ब्लैक, मैकडी लाइन को हम ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राइट ब्लू, टू ब्राइट, नो टू ब्लैक, let's just make it green. ठीक है, and histogram को for a second let's just hide it, and we'll come back to it later, but for the time being let's just hide it. Okay, so अब मुझे MACD क्या कह रहा है कि अगर let's say हम यहाँ पे खड़े हैं कि अगर जीरो से ऊपर ट्रेड हो रहा है MACD, ठीक है, और सिग्नल लाइन क्रॉस करती है MACD लाइन को नीचे से, तो दैट इज अ बाय कॉल. So if I follow that, somewhere around here I get my buy call, यहाँ पे ठीक है. और अगर मैं देखूँ उसके बाद prices went up pretty well, ठीक है, and it continued, but similarly it gave me a sell signal over here and then a buy signal again over here. तो मुझे वो यहाँ पे exit दे रहा है और यहाँ पे दोबारा री एंट्री दे रहा है. तो अगर मैं exit देखूँ अपना तो वो कहीं बनेगा roughly around here and entry somewhere around here again, ठीक है, in the bullish trend. इसी तरह अगर दोबारा एग्जिट देखूं तो मेरे पास यहाँ पे कहीं आके एग्जिट आता है. उसके बाद it is telling me consistently to not enter because although this is the trend is bullish, but this is a close long position and after that I have not had a buy position. ठीक है, मुझे बाय का सिग्नल उसके बाद जनरेट होता हुआ नहीं नजर आया. तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस ओवर है somewhere around here, और उसके बाद although even prices went up, but at the same time MACD said don't buy. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे EMS देखूँ तो EMS के बीच में देखो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे देखूँ तो इंक्रीज हो रहा है, MACD की लाइन बढ़ रही है, यहाँ पे देखो बल्कि इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, MACD की लाइन ऊपर जा रही है, EMA भी ऊपर जा रही है. ठीक है, ऑल्दो ये एग्जैक्ट वो नंबर्स नहीं है बट वो भी तकरीबन करीब ही होंगे अगर मैं वही वाले ले लूँ. Let's just take those and it will make much more sense. अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो EMA की वैल्यू आ रही है मेरे पास 44,553 और 45,627. तो दैट इज रफली 1000 पॉइंट्स, आई थिंक 1100 पॉइंट्स. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी वैल्यू भी तकरीबन उतनी आ रही है ब्लैक लाइन की, 1096, 9 तकरीबन 1000 पॉइंट्स. ठीक है, so this is giving me the difference, and as the distance is increasing so is the MACD line increasing, and when we see that this distance is shrinking तो मेरे पास MACD line flat होती जाती है और eventually जब वो क्रॉस ओवर आता है उनका तो it starts to go down as well. ठीक है,
So this line is simply telling me the direction, oh sorry, the difference between my slow and fast moving averages. Okay, यहाँ पे buy call आई, यहाँ पे sell call आई. Till then it's not telling me to buy again. And if I see the prices for a second over here, for a while over here, they enter into the bearish territory. और अगर मैं price action पे देखूँ तो that is being confirmed because I'm having a lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, so on and so forth, and that is being confirmed over here by MACD as well. Again, यहाँ पे मैं देखूँ, अगर शॉर्ट मैं करता हूँ तो कहाँ पे करूँगा? अगर मैं शॉर्ट करता भी हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैंने करेक्शन भी खेलनी है तो दैट्स फाइन, आई विल कवर इट समवेयर अराउंड हियर और हियर. ठीक है, इसी तरह अगर मैं सेकंड शॉर्ट प्लेस करता हूँ कि यहाँ पे होगा, एंड बिकॉज लाइक आई एम हैविंग अ सेकंड क्रॉस ओवर हियर, एंड यहाँ पे कवर होगा. ठीक है, अगेन यहाँ से प्राइसेस ऊपर आना शुरू होती हैं. द मोमेंट दे क्रॉस दिस, ओके दिस इज गेटिंग बुलिश एंड द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. जब तक मेरे पास दूसरा क्रॉस ओवर नहीं आता मैं एग्जिट नहीं लेता, तो आई विल टेक एन एग्जिट ओवर हियर. ठीक है, सो सिंपली पुट दिस इज what the MACD tells you to do, that when prices cross from below, so you buy, and when they cross from above, जो signal line cross करती है, तो you sell. ठीक है, so somewhere around here, these are where my signals are being generated. अच्छा, अगर एक चीज़ यहाँ पे नोट करूँ तो पहले मेरे पास प्राइसेस जब अप ट्रेंड में KSE था तो MACD कंसिस्टेंटली ऊपर था. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक वेव फॉर्मेट में था जब प्राइसेस अजीब अजीब सी चल रही थी, and after that it has been consistently bearish. ठीक है, so that gives me a lot of information about the trend as well, ये प्राइसेस किस तरह मूव कर रही हैं. अगर मैं इसी तरह देखूँ तो यहाँ पे I have multiple signals for this, and these are यहाँ पे false signal, एक और good signal, good signal, okay signal, सही है. सो दिस इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ सिग्नल्स टू ट्रेड. अब प्रॉब्लम क्या है फिर, अगर इतना ही मैजिकल है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो जाती है. ठीक है, जब रेंज बाउंड हो जाती है, एक अभी तो रेंज बाउंड नहीं है. ठीक है, जब रेंज बाउंड हो जाती है इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ और मुझे कहीं पे भी कंजेशन नज़र आती है तो दिस विल गिव मी पैथेटिक सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं. here so I'm not even breaking even. इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, दैट इज अ लॉट ऑफ ट्रेड्स. ठीक है, दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. व्हेन मार्केट स्टार्ट टू फ्लैटन दिस विल गिव यू पैथेटिक सिग्नल्स. ठीक है, और अगेन क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी जो है वो बार बार फेल करेगी. फॉर एग्जांपल जैसा इवन यहाँ पे देखूँ तो सेल कर लो, बाय, सेल. ठीक है, दैट इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग सिग्नल. अब इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लैग करता है, ये पास डेटा पे चलता है, एंड बाय द टाइम इंफॉर्मेशन गेट्स हियर एंड प्राइसेस हैव ऑलरेडी मूव्ड अ लॉट. ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जब तक जनरेट होता है प्राइसेस मूव कर चुके होते हैं. तो मैं यहाँ पे भी देखूँ तो आई हैव prices shifting momentum from here, और इस पे भी सिग्नल somewhere around here, that's a good signal. यहाँ पे अगर देखूँ तो that's a late signal, somewhere around here दे रहा है. यहाँ पे इस जगह पे देने के बजाय अगर मेरे पास टाइट EMA होती है यहाँ पे तो वो मुझे अच्छा सिग्नल देती थी. ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे again I have a buy signal over here and sell signal over here. यहाँ से यहाँ तक अगर मैं EMA को फॉलो कर रहा था तो मैं एग्जिट यहीं पे ले लेता. ठीक है, अगर मैं कैंडल स्टिक फॉलो कर रहा था तो मैं यहीं पे ले लेता. So different strategies will give you different outcomes. ठीक है, once you get to know all of them then you'll be able to use them in Confluence. अगर इतना इसमें प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसको हम मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे बिकॉज इट्स वन ऑफ द रियली गुड इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड ट्रेंड. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस कि अब इसको ऑपरेट या रीड किस तरह करना है फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ATRL अगेन. इसमें हम लोग अगर देखें तो MACD यहाँ पे प्राइसेस बॉटम बना रही हैं, RSI भी एक बॉटम बना रहा है और MACD क्रॉसओवर दे रहा है बाय का. ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड बाय सिग्नल कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, दैट्स गुड. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो अब ये दिस इज द जोन आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जांपल योर प्राइसेस आर, दिस इज अ 1 day चार्ट.
इस रेंज में ट्रेड हो रही हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन मुझे क्लियर नज़र आ रही है प्राइस पैटर्न पे। मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के यूँ मैंने फ्लैग बना लिया, ठीक है। आई कैन बाय हेयर, सेल हेयर, बाय हेयर, सेल हेयर, बाय हेयर, लाइक whatever, ठीक है। If I look at RSI, it's not giving me any signals. It's trading in a range, ठीक है। MACD not giving me any signals, trading in a range, ठीक है। So that is the problem with both of these indicators कि जब markets flatten हो जाती हैं तो तब हम लोग क्या करें, तब हम लोग इनके ऊपर rely नहीं कर सकते, ठीक है। तब हमें price patterns और price structure जो in itself है उसको follow करना है। Even EMAs जो हैं वो flat market में fail कर जाती हैं। Why? Because they are giving us an average. All of these three things are giving us an average of the past X values, and of course if something is trading in range they are likely to give us flat results, ठीक है। खैर यहाँ पे अब हम सिग्नल देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल सिग्नल आया, ठीक है। मैंने वहाँ पे लेट्स से क्रॉसओवर पे सेल कर दिया। इसी तरह यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सिग्नल आया, अगेन उसका सेल सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर, ब्रेक इवन। यहाँ पे अगेन बाय सिग्नल, that's a good signal, but sell signal again late। यहाँ पे गुड, that's a good buy signal, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर if you follow this consistently then it works, ठीक है। Why? Because it's giving you many losses as well, or stop loss hits, or even break evens, but at the same time when it's giving you good trades जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो that makes you a lot of money, सही है। So you can follow this strategy, but if you combine it with other tools then you can trade consistently। For example, अगर let's say buy करना है, उसकी strategy रख दो कि सिर्फ तब जब RSI इससे नीचे आए 30 से और हमें एक bullish crossover मिले, this is where you enter। अब उसके बाद exit ले लो, ठीक है, जो भी criteria सेट किया हुआ है। You only buy next time RSI नीचे आ गया but crossover नहीं आया अभी, जब crossover आएगा तब buy करूँगा। crossover आ गया, you buy and you enter over here and it's a good long trade, ठीक है। So you can use them in confluence with each other and price को देख के। For example, if I have a EMA over here जो इस तरह चल रही है and the moment it breaks, that's a good positive sign as well, ठीक है। So that is how you use them in confluence as confirmationary tools, not depend on them entirely। ओके, सो द ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, सिंपली हम लोग उसको देख लेते हैं, उसमें फ्लॉज क्या है अभी जैसे हम लोगों ने देखे, और फिर हम जो मेन इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है या फोकस है वो उस पे होगा मॉडर्न अप्रोच के ऊपर, तो हम उसको देखते हैं। ओके, मैकडी डज नॉट वर्क इन अ रेंज बाउंड मार्केट। वी सीन के क्यों नहीं चलता, आरएसआई के साथ भी सेम मसला है, एक्सेसिव फॉल्स सिग्नल्स, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने देखा कि बार बार, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल पे दोबारा जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस रेंज में, ठीक है, सेल बाय, सेल बाय। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर प्लॉट करूँ अपने सेल्स और बाय, मेरे पास पहला सेल आ रहा है समवेयर अराउंड इस कैंडल के बाद इधर, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह अगर मैं अगला अपना बाय देखूँ तो वो बन रहा है यहाँ पे रफली, रफली यहाँ पे, और ऑलमोस्ट उसी के साथ ब्रेक इवन पे मेरे पास सेल सिग्नल आ रहा है, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे, ठीक है। इसी तरह अगर अगला सेल सिग्नल देखूँ तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो इट्स ऑल गिविंग मी इस रेंज में कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे कवर करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। ऑल ऑफ इट इज हैपनिंग roughly on the very same level, and it is basically just giving me trades which have no sense। अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फॉलो करूँ तो दिस इज व्हाट आई कैन मेक, ठीक है, वेरी सिंपली आई कैन मेक दिस। या अगर मैं इसको भी बनाता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ना दिस वुडंट वर्क, अगर मैं लेकिन लेके जाता हूँ या लाइक दिस, ठीक है। सो आई हैव समथिंग मच मोर सिग्निफिकेंट विदाउट द मैक्सिमम प्राइसेस। यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, टेस्ट, गोज बैक अप, फेल्स, गोज बैक अप, ठीक है।
So if I follow the trend line, ठीक है, or price pattern, that is giving me a much more better signal compared to MACD, which is basically just giving me multiple false signals when prices tend to flatten out. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक ट्रेंड है, उसमें ये अच्छे ट्रेड्स दे रहा है, बट जैसी प्राइसेस यहाँ पे आगे फ्लैट होती हैं, सेम लेवल के बॉटम्स बनाने लगती हैं, RSI जस्ट फ्रीक्स आउट, ठीक है, इट डजंट डू एनीथिंग. यहाँ पे देखूँ तो अगेन सेम प्रॉब्लम. Okay, you had a short trade, cover, short again, cover, short again, cover. यहाँ पे आके आप बाय ट्रेड लेते हो, ठीक है. सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमैटिक. अगर मैं यहाँ पे वही, आई थिंक दिस इज द सेम एरिया, यहाँ पे अगर हम फ्लैग बनाए तो हमारे पास एक अच्छा सा कंसोलिडेशन पैटर्न रफली यहाँ पे बन जाता है. तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास प्राइस पैटर्न अगेन मेरे पास ज़्यादा सूटेबल चल रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज क्लियर ब्रेकआउट with volume, which is something MACD is telling me much later in the day. Okay, so excessive false signals lag. ठीक है, lag का मसला अब जिस तरह मैं यहाँ पे for example over here it's giving me a signal somewhere, let's say over here, यहाँ पे buy कर लो, although prices यहाँ पे bottom हो रही है, जहाँ पे मैं अगर देखूँ तो short term पे मेरे पास double bottom बन रहा है 1 2, ठीक है. so it gives you signals with a lag. और यहाँ पे अगर buy signal देखें तो यहाँ पे आ रहा है कहीं, prices यहाँ से ऊपर जा रही हैं, ठीक है. so that is again a lot of points missed. अब exit देखूँ तो यहाँ पे दे रहा है, इसी तरह यहाँ पे लेना चाहिए था. why you had a shooting star on high volume after bullish candles, this was a exit call anyway. और एक अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास रफली यहाँ पे दिस इज अ रेजिस्टेंस 1 2 3 4. सो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस से प्राइसेस वापस आना शुरू होती हैं तो मैंने क्या बोला कि कंफर्मेशन टूल के तौर पे यूज़ करना है, एंड आई हैव अ कंफर्मेशन ऑन MACD, दैट इज़ व्हेन आई एग्जिट, ठीक है, दैट इज़ व्हेन आई टेक अ शॉर्ट ट्रेड. सो इफ आई डिसाइड टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड और MACD का क्रॉस ओवर भी आ जाता है, दैट इज अ कंफर्मेशन साइन वेयर आई कैन प्रोबेबली ऐड मोर क्वांटिटी. डज नॉट प्रिडिक्ट रिवर्सल, ठीक है. अगर मैं यहीं इसी एग्जांपल की अगर बात करूं तो MACD तो भी मुझे दिखा रहा है एक्सपैंड हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बाय सिग्नल है, कोई डोंट नो नीड टू वरी, लाइक चिल आउट, प्राइसेस एक्सट्रीमली बुलिश, तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है. बट यहाँ पे अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ड्रॉ हुई हो और मुझे पता हो कि प्राइसेस यहाँ से बहुत शार्प पहले वापस आई हैं और शूटिंग स्टार बन जाए हाई वॉल्यूम पे एक की रेजिस्टेंस के ऊपर, मेरे पास तो एग्जिट साइन आ गया, ठीक है. क्या MACD ने प्रिडिक्ट किया? नहीं. Since MACD is based on past values, it cannot predict what is going to happen, ठीक है, until and unless it's a divergence, which I have over here, ठीक है. एक हायर हाई बन रहा है बट MACD एक लोअर हाई बना रहा है, ठीक है. तो अगर मैं इसको डाइवर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दिस मेक सेंस. अगर मैं इसको क्रॉस ओवर ऑर्थोडॉक्स स्ट्रैटेजी की सेंस से देखूं, it does not make sense, it's not predicting reversal for me, ठीक है. RSI simply, again, prices can move much higher even above 70 and move much lower below 30 and trap you in a bad trade, ठीक है, bad trade, ठीक है. अब जैसा मल्टीपल टाइम्स हमने देखा, पीछे भी हम एक एग्जांपल देख रहे थे, RSI इसी पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है. RSI ओके. तो अब जब प्राइस 70 वाली बात की, 70 यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, ओके दिस क्रॉसिंग 70, इट्स ओवरबॉट, आई एम गोना शॉर्ट ओवर हियर. इसके बाद भी प्राइस कितनी ऊपर गई है, इट वेंट अप टू 80, ठीक है. इसी तरह अगर मैं 53,000 वाली एग्जांपल दूँ तो मैंने यहाँ पे लेट्स से ओके यहाँ से ओवरबॉट हो गया जी 42,000 से, शॉर्ट करना शुरू कर दो, उसके बाद प्राइसेस कहाँ जाती हैं 53 तक, ठीक है, 53,000 तक. so that's 11,000 points that you missed. why? because you were shorting based on a 70 figure. तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ लेट्स से probably 29/11 2016 का जाके ब्रेक इवन होता है 18/7 2017 में, 8 महीने 9 महीने बाद जाके उसे ब्रेक इवन हो रहा है. वाई?
because you were waiting for you placed your trade on the 70 hypothesis. इसी तरह एक मेरी फेवरेट एग्जांपल है ओवरसोल्ड की। जब मुझे लोग बोलते हैं ना ओवरसोल्ड हो गया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, बट लेट्स जस्ट लुक एट DOL। क्या हो गया इसके चार्ट को? What's wrong with that? Let's make it auto। ये अच्छा डिस्कॉन ऑक्सी है ना? नो, पता नहीं क्या हो गया। एक सेकेंड, DOL चाहिए हमें, प्रेफरेंस शेयर नहीं करना। ओके, सो इफ आई लुक एट DOL, कहाँ से ओवरसोल्ड हुआ है? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था ना पहला, तो रफली हाँ ये देखो ना, इतना पुराना चार्ट है, लाइन लगी हुई है पहले से। ओके, सो इफ आई लुक एट ओवर हियर, तो यहाँ से ओवरसोल्ड हुआ, प्राइसेस वापस गई, और उसके बाद ओवरसोल्ड है। यहाँ से ओवरसोल्ड होने के बाद वापस पे आई, ओ इट्स कमिंग बैक, आई शुड बाय इट, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन इट वाज फॉर 24 रुपीज बैक ऑन 22nd 25th February, ठीक है। और उसके बाद kept on going down, kept on going down and went as low as 12 rupees, ठीक है। That is loss of 50%, and till date prices haven't come back, but although prices oversold होती नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर देखूँ, again it enters oversold territory at 16.9 and goes back to 12। that is wow, that's 25% loss, ठीक है। So don't rely on this, just take it as a confirmation too कि अगर prices यहाँ पे बार बार नीचे, let's say यहाँ से नीचे जाना शुरू होती हैं और सपोर्ट ब्रेक हो गई है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और RSI कह रहा है कि अच्छा सही है, आई हैव पीक्ड आउट, आई हैव मैक्स्ड आउट, देन यू बेसिकली गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अभी हम लोग और आगे चल के मॉडर्न अप्रोच को देखते हैं, तो इट विल मेक मच मोर सेंस। ओके, सिग्नल्स कैन लैग, अच्छा ये भी सिंस प्रीवियस पीरियड्स का है, तो इस पर भी मसला यही है कि सिग्नल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, एंड majority of the price action is between the range 30 and 70। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बेसिकली हमारे पास ये वाले इंस्टेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे पास 13 ट्रेड्स आए हैं इन ऑलमोस्ट 2 years, ठीक है। सो प्रॉबेबली दैट मीन्स 1 ट्रेड अ मंथ, दैट्स नॉट इनफ फॉर मी, ठीक है। सो ट्रेडिंग की जो इसमें जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी है RSI में, that is probably too less because most of the trading happens in between these two lines 30 and 70। उसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है उसको हम आगे जाके देखते हैं। ओके, स्पॉटिंग डाइवर्जेंसेस, मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या है कि हमने RSI में सबसे पहले क्या काम करना है, स्पॉट करनी है डाइवर्जेंसेस, ठीक है। आई एम नॉट गोना गो ओवर दिस अगेन। जिससे हमने बार बार देखा कि जब भी प्राइसेस और RSI एक मोमेंटम में मूव नहीं कर रहे होते, दैट इज नोन एज अ डाइवर्जेंस, ठीक है। एंड व्हेनेवर दैट हैपेंस, chances are, like high probability is that prices are going to reverse and you can place a counter trade, ठीक है। जैसा 53,000 वाले लेवल पे हुआ, या 47,000 वाले लेवल पे हुआ, इस तरह 42,000 वाले लेवल पे हुआ। so whenever that happens, तो यहाँ पे you can take opposite trade, trade the ranges। This is the important part, okay, the trend is considered bullish if RSI is moving between 30 and 100, ठीक है। oversold, overbought, forget that shit। simply अगर RSI 30 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और 100 तक भी जाता है, जहाँ तक भी जाता है, that is considered bullish। अगर मैं यहाँ पे देखूँ KSC को ही देख या इस पे भी देख लेते हैं, चलो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइसेस 30 से ऊपर है, ठीक है, रफली यहाँ पे 30 से ऊपर है, और 70 से ऊपर जहाँ मर्जी जा रही है प्राइसेस, ऊपर जा रही है। लेट्स से कहाँ पे है ये, कितनी प्राइस है, 12 से, ठीक है, गोइंग अप, कमिंग बैक डाउन, ऑल्दो दे आर कमिंग बैक डाउन, यहाँ पे आई, ठीक है, बट दे नेवर क्रॉस 30 वाली लाइन,
इसी तरह अगर अब रेंजेस की जब बात करेंगे तो दिस वुड मेक मोर सेंस कि इसकी रेंज थोड़ी फ्लेक्सिबल है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। सो इट्स कम्प्लीटली ट्रेडिंग इन द अबव रेंज। ठीक है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है दैट्स 30 टू वट एवर नंबर जो ऊपर की तरफ जाता है अबव 70। बट अभी हम लोग जब नेचुरल रेंजेस की बात करेंगे तो इसमें हम बताएंगे देखेंगे किस तरह हम इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब प्राइसेस बेरिश हैं तो मेरे पास उल्टा ट्रेंड है, 30 से नीचे जितनी मर्जी जाती हैं, 70 से ऊपर कभी नहीं आती। ठीक है, 70 अभी यहाँ पे 60 भी क्रॉस नहीं कर रही, बट पॉइंट इज कि दे नेवर क्रॉस अबव 70 मार्क। ठीक है, कि नेवर तो नहीं, 70 नहीं, नेचुरल रेजिस्टेंस मार्क क्रॉस नहीं करती। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे प्राइसेस नीचे तो जा रही हैं बट कभी ऊपर नहीं आ रही। तो ओवरऑल दिस इज अ बेरिश ट्रेंड, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड, दिस इज अ बेरिश ट्रेंड। इसी तरह अगर मैं केएससी की एग्जांपल देखूं तो मेरे पास उसमें भी यही सेम ट्रेंड है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरे पास प्राइसेस, एक सेकेंड, फेब्रुअरी से आरएसआई हैज नेवर इवन क्रॉस्ड 60 वाला मार्क। ठीक है, तो प्राइसेस वहां तक आती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। और यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी हम वही नेचुरल रेजिस्टेंस के लिए भी बात करेंगे जब रेंज की, इसको हमने किस तरह अकोमोडेट करना है उसको भी देखेंगे। बट जस्ट टू विजुअली सी यू हैव टू सी कि 30 से नीचे कितनी दफ़ा जा रही हैं और ऊपर आती है तो कितनी आती है। एक ये नेचुरल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, एक रफली यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बुलिश टेरिटरी में देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बैड सीन है कि ये हमारे पास एक छोटा सा बीच में बेयर रन आया था, बट अगर मैं उसके बाद देखूँ 30,000 वाले लेवल से तो प्राइसेस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं और आरएसआई भी एक ऊपर वाली रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इट्स नेवर कमिंग डाउन बिलो 380 वाला मार्क। सो व्हेनेवर दैट इज हैपनिंग, बुलिश ट्रेंड, उसके बाद ये मेरे पास बिग बेरिश ट्रेंड। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास साइकिल्स हैं, एक बड़ा बेरिश ट्रेंड आता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बुलिश ट्रेंड, again prices go up, then the bigger wave comes down, again I have a short bearish trend। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो something like this, इसी तरह something like this over here। ठीक है, तो I have trends within trends। This is probably getting a little confusing, but just to uh, tell you that don't buy oversold, overbought regions, follow the ranges. If prices are moving between let's say 70 and 0, that's considered a bearish trend। इसी तरह अगर prices 100 से लेके 30 तक ट्रेड करें, that is considered a bullish trend। इसी तरह इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ETRL, that's a good example। अगेन मैं यहाँ पे देखूँ तो 30 से नीचे जा रही हैं प्राइसेस, लेकिन जब ऊपर आती हैं तो ये तो क्रॉस ही नहीं कर सक रहा है इस लेवल को। ठीक है, यहाँ पे आके बस हो जाती है, फिर कम्स हियर टेक्स अ हिट। और ये हमने कल जो अगले सेशन जो हमारे पास मंडे वाले दिन सेशन बनता है, नहीं मंडे नहीं बनता, फ्राइडे बनता है, फ्राइडे को जो हमारे पास सेशन आएगा उसमें RSI इस लेवल को हिट करेगा और अपनी रेजिस्टेंस को हिट करेगा। तो मेरे पास क्या होगा, एक कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से ट्रेड से एग्जिट ले लो क्योंकि नेचुरल रेजिस्टेंस के पास आ गया। ठीक है, अब कंफर्मेशन टूल पे किस तरह यूज़ करना है वो बिल्कुल एंड पे है, बट अभी जस्ट टू understand the concept is same, prices go below 30 but never cross above 70। ठीक है, यहाँ पूरे में एक दफ़ा इसने कोशिश की है, बाकी थ्रू आउट इट हैज़ रिमेन्ड अंडर 70 बट वेंट डाउन टू द लेवल्स as low as 15। ठीक है, so this is what you have to keep in mind। Similarly अगर मैं यहाँ पे देखूँ prices are going up but it's never coming below 30, so you have to probably define an area कि मैं कहाँ पे बाय करूँगा, मैं कहाँ पे शॉर्ट करूँगा। नाउ आई नो कि RSI, ओके, सो लेट्स जस्ट सी हाउ टू यूज इट एज ए कंफर्मेशन टूल, क्विकली देख लेते हैं। ओके, मेरे पास लेट्स से ATRL हैज दिस pattern forming and whenever it comes to, let me change the EMA, it should be 383।
Okay, so based on my EMA lesson, I know that whenever it comes to 33 EMA, it takes a hit, and whenever it crosses it, it takes a hit at the trend. ठीक है, 1 2 ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऑफ है, लेकिन like for the time being let's just consider it 3. Now the fourth time it's coming, and similarly I want to see if I want to short it over here or not, या close my long over here or not. प्राइसेस जब यहाँ पे हिट लेंगी, ठीक है, तो मेरे पास RSI कहाँ होगा, यहाँ पे. और नेचुरली जब भी मैं देख रहा हूँ, विजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फॉर ATRL whenever RSI comes into this zone, that is when जो इसको delete करना, whenever RSI comes into this zone, it is likely to reverse because it is happening in the past. ठीक है, that is my theory जिसको मैं फॉलो करूँगा. सही है. और अगर मैं यहाँ देखूँ, okay, I just spotted, I think I spotted something very interesting. Let me come back to that, but for the time being अब मैं इसकी confirmation के साथ लूँगा. I know RSI is exhausting between 50 and 55 or 60 let's say, and price is approaching a overhead resistance, so I should get cautious beforehand. ठीक है, अब जैसे हम अगर अपने उसके ट्रेड की बात करें तो हमने जहाँ पे भी लिया 62 पे लिया, but now it's at 60, let's say 69, and it's approaching कितना बनता है ये हमें 71.08 बनता है, तो फिर कल फ्राइडे को let's say 71 वाला लेवल आ जाता है तो we take an exit. ठीक है, why? Because it has a historical resistance over here, and at the same time RSI will reach its exhaustion point. तो अगर कल प्राइसेस हिट लेती हैं फ्राइडे को, सॉरी 71 से, और नीचे आना शुरू होती हैं, तो दैट मीन्स वी एग्जिट द ट्रेड. ठीक है, सो RSI इज कंफर्मिंग दैट एज वेल. सिमिलरली इसी तरह अगर मैं नीचे की बात करूँ, तो आई नो व्हेनेवर प्राइसेस आर रीचिंग दिस लेवल 1 2 3 4 रफली, ये ब्रीच है, ठीक है, ये सेकंड लेवल पे चला जाएगा. जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होगी दूसरी इन प्ले आ जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रफली ये बनती है, ये बनती है. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ब्रेक हो जाती है तो मैं दूसरे पे चला जाऊँगा. सो लेट्स से प्राइसेस आर कमिंग डाउन, और जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टच करती हैं 1 2 3 4, तो दे टेंड टू गो बैक. ठीक है, जब इसको ब्रेक करती हैं नीचे वाली पे आ जाती हैं. बट अगर मैं यहाँ पे RSI के साथ देखूँ तो दैट्स गिविंग मी अ सिग्नल एज वेल कि जब भी प्राइसेस इस लेवल पे आती हैं तो हिट लेके ऊपर चली जाती हैं, हिट लेके ऊपर, हिट लेके ऊपर, ऊपर, एंड दिस टाइम अराउंड इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन अबव. ठीक है, और जिस तरह यही कॉन्सेप्ट बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, हॉरिजॉन्टल लेवल्स का या ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस का हमारे पास अप्लाई होता है इसके ऊपर. ठीक है, RSI के ऊपर. सो यू डिफाइन योर रेंज कि कहाँ पे किस रेंज में आपके पास ट्रेड हो रहा है और आपकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस किस तरह लाइक करते हैं. इफ़ योर प्राइस इज रीचिंग फॉर एग्जांपल योर रेजिस्टेंस लेवल ओवर हियर जो EMA 33 है, ठीक है, एंड RSI इज रीचिंग इट्स एग्जॉशन जोन, that is when you exit a long trade and even place a short trade. अब यहाँ पे since I know that the trend is bearish because it's trading between 0 and 30, my likelihood of the trades should be to short. ठीक है, long trade यहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए, like it's against like your major trend, so like why would you want to trade long? But we people have a problem कि हमें ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, तो हम लोग इस वजह से करेक्शन भी प्ले करते हैं. ठीक है, कल की स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल. प्राइसेस अगर 71 72 पे जाती हैं, टेक एन एक्सिट एंड गेट आउट. अगर क्लोज कर जाती हैं उससे ऊपर और RSI समहाउ मैनेज कर जाता है इस एरिया को ब्रेक करने में, दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन, और प्रॉब्ली हम लोग फिर उसको होल्ड करेंगे. बट इफ़ आई ऑब्जर्व ओवर हेयर, यहाँ पे भी देखो अगर सिमिलर पैटर्न है समथिंग लाइक दिस, एंड फिर यहाँ पे चोक हो गया. लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे मेरे पास डाइवर्जेंस भी है, बिकॉज लाइक RSI is making slightly lower, prices are making a slightly lower low, but RSI is making a much higher low, so this might come into play.
but let's see how it plays. खैर anyways, this is the concept behind how to trade RSI ranges. इसी तरह इसी को अगर हम किसी और एग्जांपल में ले जाएं, KSE में ले जाएं, अगेन सेम स्टोरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्राइसेस बार बार हिट लेती हैं इस लेवल से, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये लेवल बनता है रफली, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। प्राइसेस कंसिस्टेंटली 90 से सॉरी 0 से लेके अंडर 70 ट्रेड कर रही हैं, तो ये तो मेरे पास सीधा सीधा क्लियर सिग्नल है कि भाई प्राइसेस जो है वो बेरिश हैं, तो ट्रेंड जो है वो बेरिश है, ओवरऑल यू शुड टेक अ शॉर्ट पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब भी प्राइसेस इस लेवल में आती हैं, इधर से हिट लेती हैं वापस चली जाती हैं, आती हैं हिट लेती हैं वापस चली जाती हैं। आई such a strong move, ठीक है, but got choked out over here. So this is something which is powerful. तो अगर RSI let's say prices यहाँ से at but यहाँ पे एक और चीज बनाते हैं, बल्कि that's more interesting. इसमें हम ISL का भी ट्रेड देखते हैं, जो हमने शॉर्ट लिया था वो भी कुछ इसी बेसिस पे था। Okay, so let's say prices are trading in this range and all of a sudden they break out. और अगर मैं RSI को देखूँ let's say, और RSI भी इसी तरह मूव कर रहा है इसके साथ साथ, बट जब यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो निकल चुकी हैं और RSI जस्ट अप्रोच कर रहा है इस लेवल को, ठीक है, और प्राइसेस एकदम रिटर्न होने लग जाती हैं, ठक फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट बिकॉज whenever prices are making a new high, your indicator should be making a new high as well. If they don't, then prices tend to reverse. अगर मैं यहाँ पे देखूँ फॉर एग्जाम्पल, हमें फॉल्स ब्रेकआउट कहीं पे नज़र आ जाए, it's gonna be hard to spot right now, but let's try to find out. Chalo, we'll try to find out some. Wait a minute. Can I classify this? No, I can't classify this as that. Okay. Anyways, when I find some false breakouts, I'm gonna share those examples with you as well. But just remember, when prices are making new highs, your indicators should be making new highs as well. Okay. If they aren't, then it's a problem, and you should take a counter trade. Okay, trend is considered bullish if RSI is moving. ये अब हमने कर लिया है. Each script is traded by certain people and eventually their psychological temperament is translated into pieces and prices and effectively indicators. This leads to formation of patterns and ranges and indicators which we can trade effectively as well. Okay, so what I mean by this is that, for example, अब अगर हमारी बात की जाए, हम लोग हैं गुड 70 ऑट पीपल एंड वी आर ट्रेडिंग 4-5 स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ATR, MLCF एंड TRG, whatever those scripts are. Let's say we all of you follow exactly my levels, ठीक है, and let's say all of you have 1 million rupees, so we have 70 million rupees or 7 crore rupees which we've put into the market, ठीक है। और हमारा एक ट्रेडिंग स्टाइल है कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास EMA हिट हो जाती है ट्रेडिंग, वी टेक अ स्टॉप लॉस हिट एंड सिमिलरली जब एक सर्टेन सपोर्ट लेवल से बाउंस लेता है तब हम बाय करते हैं, so that does translate, that basically our trading decisions translate into the price action. And let's say if we have 2 upper caps in a row, 3 upper caps in a row, 4, let's say 5-10 caps in a row, और हम एक लेवल पे आकर डिसाइड करते हैं नहीं यार दिस इज इनफ, दैट्स मोर देन इनफ, अब मैं और इसको नहीं होल्ड कर रहा, ठीक है, तो ऐसा होता है या ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है। तो जब भी ये चीज़ होती है, लेट्स से हम लोग 5 डेज पे कंफर्टेबल हैं, 5 डेज हमें गेन होता है तो कंफर्टेबल है, दैट मीन्स कि वी आर लेटिंग द RSI गो अप टू 5 डेज। तो इस तरह बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आर ट्रेडेड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है, एंड देयर साइकोलॉजी ट्रांसलेट्स इनटू
बेसिकली क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, प्राइस एंड इवेंचुअली इंडिकेटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल KSC की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय ट्रेंड लाइन, लेट्स से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। और अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI जो है वो भी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, लेट्स से 46 टू 53। जब भी इस रेंज में आता है ठा करके नीचे चला जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट एंड आई नीड टू बी वेरी अबाउट। KSC 53, ATRL को देखेंगे, ATRL की कुछ और रेंज है, फॉर एग्जांपल ATRL की बड़ी सिमिलर होगी क्योंकि KSC है। ATRL की 43 में नहीं है, इट्स 50 टू 57, ठीक है। इसी तरह अगर मैं DOL की बात करूं, DOL की रफली पहले यहाँ पे थी, ठीक है, समवेयर अराउंड 47 टू 50, ठीक है। नीचे की अगर मैं बात करूं बुलिश ट्रेंड में, तो ऑल्दो 30 वाला रूल है, इसी तरह हम लोग इसको स्लैक देंगे। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल तक आता है और अपना ट्रेंड फिर भी सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज द लेवल टिल वेयर वी कैन गिव इट स्लैक। एंड अगर मैं फ्यूचर में देखूँ, दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एज वेल अगेन, ऑल्दो इट डिड नॉट परफॉर्म एनी सिग्निफिकेंट रोल, इसलिए प्राइस पे फोकस पहले, इंडिकेटर्स पे बाद में। लेकिन इंडिकेटर्स की रेंज को भी स्टैटिक नहीं रखना, हर शेयर पे ट्रायल एंड एरर करना है कि कहाँ पे कौन सा चल रहा है, ठीक है, और उसको फॉलो करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक ये 1 2 3 4 टॉप्स बन रहे हैं रफली यहाँ पे। और अगर मैं प्राइसेस को यहाँ पे RSI को देखूँ, 1 2 रफली 3, इन 3 पॉइंट्स को ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। सो 1 2 3 रिजेक्शन पॉइंट्स कि ऑल दो प्राइसेस एक हाई बनाने की कोशिश कर रही हैं, बट RSI इज ट्राइंग टू मेक लोअर हाई। सो दिस इज ऑलरेडी टेलिंग मी कि ये जो फॉर्मेशन बन रही है, इट हैज़ अ हायर चांस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, कि सिंस प्राइसेस आर बीइंग ड्रैग टू द लोअर साइड, जहाँ पे वो फिर नीचे जाती हैं, अब जब इस टेरिटरी में आती हैं तो दिस इज अ बैड साइन। वाई? क्योंकि पहले पुश हो गई 70 वाले लो तक, 70 से नीचे, और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड ले गए, और जब यहाँ पे आई ये तो भाई लाइक क्लियर कट साइन है कि जब यहाँ से रिवर्स हुई प्राइसेस के, बेयर ट्रेंड हैज स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ देखूँ 20 से स्टार्ट हुआ एंड वेंट डाउन टू 11, दैट्स ऑलमोस्ट 50% रिटर्न, तो दैट्स अ गुड रन। और उसके बाद अगर मैं देखूँ प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग अप एंड 70 से ऊपर जाने के बाद उसके बाद वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, इस लेवल को सस्टेन कर रही हैं, तो दैट इज अ बुलिश साइन। सो यू हैव टू ट्रायल एंड एरर इट एंड फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ योर रेंजेस फॉर ईच शेयर। अगर इसी तरह हम KSC वीकली को देखें तो उसके ऊपर कुछ और होगा। ओके, दिस इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वीकली रेंज है, 1 2 3 4, एक तो नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इस लेवल से आके एग्जॉस्ट हो रहा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ना प्लॉट करूँ, जब भी प्राइस इस लेवल पे आती है मैं शॉर्ट प्लेस करना शुरू कर दूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। बट अगेन वही बात कि दिस वर्क्स ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम till it fails, and hence trading it alone is just like bad। इसी तरह अगर मैं सपोर्ट लाइन देखूँ यहाँ पे, तो रफली मेरे पास ये वाला लेवल बन रहा है, 1 although breached, 2 एंड here। तीसरी दफ़ा देखूँ तो फिर ब्रीच हो गया यहाँ पे, फिर इस दफ़ा एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। सो दिस हैपेंस एज वेल कि जिस तरह हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं, सिंस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स ट्रेंड्स इंडिकेटर्स के अंदर, RSI MACD के अंदर भी यू विल फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, एंड दे वर्क परफेक्टली फाइन एंड यू शुड यूज दैम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड रेंजेस। इसी तरह अगर मैं कोई और लेट्स से TRG की एग्जांपल ले लूँ, TRG विल हैव समथिंग, ये लो, आई कैन क्लियरली सी अ रेंज, ठीक है, ये वाला एरिया है, बहुत वाइड एरिया है, लेकिन पॉइंट ये कि वीकली चार्ट है तो उस पर वाइड ही होगा। अगर इसको हम डेली में लेके जाए हमें उस पर भी मिल जाएगा, बट अगर मैं बल्कि इसको ये लो, लेट्स just draw a line because I can see it very clearly।
ठीक है। तो रफली व्हेनेवर प्राइसेस कम ओवर हियर दे टेक अ हिट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं भी बनती, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई जस्ट नीड टू सी कि प्राइसेस रिवर्स हो रही हैं, फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट है और मेरे पास एक नेचुरल रेजिस्टेंस से हिट ले रही है। इसी तरह अगर आईएसएल की बात करें, वी शॉर्ट सोल्ड इट द अदर डे एंड उसके पीछे रैशनल हमारा था कि ईएमए आई थिंक 26। ओके, ईएमए 26। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बार बार इस लेवल पे आके हिट लेती है, यहाँ से हिट ले रही है, ठीक है। फरवरी से ये बेसिकली हिट ले रही है, प्राइस बार बार इधर आती है, हिट लेती है, हिट लेती है, हिट लेती है। दिस टाइम अराउंड व्हेन प्राइसेस वर कमिंग हियर वी हैड अ शॉर्ट टू बी प्लेस्ड, और उसमें मैं बार बार एक चीज़ बात कर रहा था कि इंडिकेटर्स अपनी नेचुरल रेजिस्टेंस पे आ गए। दिस इज व्हाट आई मेंट कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, शॉर्ट इस दिन लिया था, एग्जैक्टली इस दिन, ठीक है। एंड आई सेड कि इंडिकेटर्स जो है वो अपनी नेचुरल रेजिस्टेंस पे आना शुरू हो गए, सो द अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, सो वी कैन प्लेस शॉर्ट ओवर हियर एंड दैट वर्क आउट परफेक्टली फाइन, ठीक है। इवन दो हमारे पास यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई नेचुरल जोन्स ऑफ, और इसका देखो तो दिस वाज 50 लेवल, और इसी तरह यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचुरल लेवल्स ऑफ ईच शेयर एंड देन ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज द वे टू ट्रेड आरएसआई। फाइंड, एक तो पहले डिफाइन करो अपना बुलिश बेरिश ट्रेंड किस रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिक रेंज फाइंड करो शेयर की, एंड दैट इज व्हाट यू ट्रेड। ओके, मैकडी में भी अगेन स्पॉटिंग डाइवर्जेंसेस, आई एम नॉट गोना गो ओवर दिस अगेन, ये हमने कर लिया। एंड अच्छा, एक चीज़ हमें बड़ा मसला आ रहा था कि लैग बहुत ज़्यादा करता है, तो हम इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम मैकडी को देखते हैं, कि हमने ले आते हैं मैकडी को यहाँ पे, फिर सेटिंग्स चेंज करते हैं। हिस्टोग्राम एंड पे यूज़ करेंगे अभी, पहले लेट्स जस्ट ट्राई टू, ओके। अच्छा, आईएसएल के एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक तो हमारे पास सिग्नल लैग कर रहा है, ठीक है। लैग किस तरह कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास पहला गैप अप ओपनिंग आया है, मेरे पास रन अवे गैप है, ठीक है। यहाँ पे अंधे बंदे को भी नजर आ जाता है कि, अंधे को भी नहीं नजर आएगा कि ये बाय ट्रेड है यहाँ पे, बट ये मुझे बता रहा है यहाँ पे जाके जब उसको ऑलरेडी कैप लग चुकी है और ये डे एंड पे है, तो सिंस मेरे पास सिग्नल यहाँ आएगा, बाय द टाइम आई रिसीव इट इट विल बी हियर, ठीक है। दैट इज टू मच लैग in the trade for me to take. So what I will do is go to its settings and transform that from 12:26:9 to 5:35 and 5। मैंने बेसिकली सारा स्पीड अप कर दिया प्रोसेस। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस कैंडल पे, इस कैंडल पे सिग्नल जनरेट करता है, इस पे कंफर्म हो जाता है, मेरे पास यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। और दो पहले यहाँ पे कहीं पे आ रही थी, मेरे पास अब यहाँ पे आ रही है, तो आई गेट इट एट 30 38 एंड डंप इट एट 44। नुकसान क्या है, फॉल सिग्नल, ये ढेर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो इसका फ्लॉ तो ये है, बट यू हैव टू डील विद इट। ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर दिस विल हेल्प मी अ लॉट, गिव मी बेटर पिक्चर। आगे हम जब इसको देखेंगे कि हम यूज़ किस तरह कर रहे हैं, दैट विल मेक मच मोर सेंस। ओहो, ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि ये डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करनी है। 5:35 5 वाली सेटिंग अगर मैं डेली में देखूँ, वीकली पे देखूँ, दिस वुड वर्क फाइन, मंथली में भी इट वुड वर्क फाइन। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास बाय सिग्नल यहाँ पे आ रहा है कहीं, और सेल सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। मैकडी हैज़ अ प्रॉब्लम, डाइवर्जेंस, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो एक सेल सिग्नल है, बाय सिग्नल है, अगेन सेल सिग्नल है, ठीक है।
दीज आर मल्टीपल सिग्नल्स जो इसके अंदर एक फ्लॉ है कि हमें फॉल्स सिग्नल्स तो देगा। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पे ले जाऊँ शायद यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बट नहीं, इसमें भी सेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे ये मैकडी का एक इनहेरेंट फ्लॉ है कि ये हमें वो देता रहेगा फॉल्स सिग्नल्स। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें। ठीक है, और मेजर टाइम्स इसी को हम लोगों ने प्रेफरेंस देनी है, बट जहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आ जाए तब वी टर्न टू आर इंडिकेटर एंड सी व्हाट इट्स डूइंग। अगर मैं यहाँ पे देखूँ RSI, तो अगेन इट्स नेचुरल जोन में ट्रेड हो रहा है। दिस टाइम इट ब्रोक एंड इट टेस्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड इट्स टेस्टिंग इट अगेन। वी कैन शॉर्ट इट बॉयज, वी हैव अ ट्रेड। हम इसको शॉर्ट करते हैं, हमारे पास कहाँ तक जाएगा ये बहुत नीचे जाएगा, अभी तो बहुत खुल गया इस जगह। बट एनीवेज दैट्स द जस्ट ऑफ इट। नंबर वन कि किस तरह इसको सेटिंग्स को चेंज करना है, थोड़ा सा बेहतर हमें सिग्नल्स दे देगा ये। इस पर अगर हम 525.9 भी यूज़ करें वो भी अच्छी होगी, 535.9। ठीक है, दैट्स अ गुड सेटअप, वी कैन यूज दिस 535.9। दिस इज अ बेटर सिग्नल। यहाँ पे सिग्नल दे रहा है और इट्स लास्टिंग सिग्नल टिल हियर, so that's okay. So that's the flaw. Okay, however, it would increase the number of false signals. To get rid of the false signals, focus less on the crossovers and more to what happens afterwards. What I mean by this is कि distance को हमने देखना है वो क्या कर रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैक टी, दो चीज़ें देखनी है, एक स्लोप और दूसरी डायरेक्शन। अगर मेरे पास डायरेक्शन क्रॉसओवर के बाद अपवर्ड्स है और डिस्टेंस जो है वो आपस में इंक्रीज हो रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है, that means the trend is strong and bullish, and when it's decreasing that tells me the trend is getting weaker. Okay, so if I take an entry over here, I might take an exit over here because it's started to trending down. Okay, so you have to focus on the distance, and इसी तरह इसको KSE पे देखें, the same principle will apply. Again bullish signal and distance is increasing and upward, so it's a buy signal. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, will it be a buy signal? In theory it is a buy signal अगर मैं सिर्फ crossover देख रहा हूँ, but the distance is not increasing and they are no, both the lines are not going upwards, hence I am convinced to not trade this false signal. Same अगर इधर देखूँ तो क्रॉसओवर हुआ है और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और डायरेक्शन नीचे, सो आई वुड टेक अ गुड शॉट ओवर हियर। ठीक है, लेट्स से प्रॉब्ली ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे शॉट लेने में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट द डिस्टेंस विच इज बिटवीन बोथ लाइन्स एंड द डायरेक्शन। अगर ये बिल्कुल स्लांट नीचे की तरफ कर रहे हैं तो दैट्स गुड, बोथ ऑफ देम, नॉट अ सिंगल लाइन, बोथ ऑफ देम। जैसे ये एक अच्छा सिग्नल है, ये अच्छा सिग्नल है, ये फॉल्स सिग्नल अवॉइड हो जाएंगे। वाई? बिकॉज डिस्टेंस उस तरह नहीं इंक्रीज हो रहा और डायरेक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखूँ तो दिट्स अ ह्यूज शॉर्ट कॉल जो यहाँ से चल रही है, यहाँ पे आती है, फ्लैट होती है, बट फिर उसके बाद एक्सपैंड करने लगी। सो दिस इज अ ग्रेट शॉर्ट सिग्नल since the difference is increasing and direction is downward. ओके, अब इस डिस्टेंस और उसमें चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि हम इसके ऊपर एक थर्ड चीज़ यूज़ कर लें जो होती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इधर से सेटिंग से डिफ़ॉल्ट पे ओपन होगा। अभी मैंने हाइड किया हुआ था इसको, लेट्स जस्ट मेक इट थिक एंड हाइड। अभी हाइड नहीं करते बल्कि यहाँ पे देखते हैं, अगर ये बार्स पॉजिटिव टेरिटरी में, तो दिस टेल्स मी कि मैकडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर में, अगर ये ऊपर होती हैं, जीरो से ऊपर है, तो दिस टेल्स मी पॉजिटिव टेरिटरी में। ठीक है, सो यू कैन टेक अ बाय ट्रेड एंड इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन देम तो यू विल सी हिस्टोग्राम इंक्रीज हो रहा होगा। जब डिक्रीज होना शुरू होता है दैट्स अ वार्निंग साइन, यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड। ठीक है, बिकॉज इट शोज मी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर नीचे की तरफ क्रॉस ओवर आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, पहले यहाँ पे आया तो ये हिस्टोग्राम्स उस तरह इंक्रीज नहीं हो रहे, they're minute, I'm not shorting, but the moment they break my support line and the histo यहाँ पे distance increase होना शुरू हुआ, histograms भी expand होना शुरू हो गए। ठीक है, this is something which is summarizing the information of this, so you can actually
Just hide MACD and signal lines and focus on this. If it is positive and increasing, that is a buy signal. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे उसकी buy signal है. इसी तरह अगर नीचे और increase हो रहा है तो that is a short signal. But what if it goes above but the MACD lines are not increasing? That's not a buy signal, that's a false signal. ठीक है, so this is how histogram can help you interpret the information much better. अब depend करता है, कुछ लोगों के लिए इन दोनों चीज़ों को देखना ज़्यादा ईजी है, फॉर एग्जाम्पल मी, या कुछ लोगों को हिस्टोग्राम ज़्यादा सूट करेगा. दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्रेड ऑन ईच टाइम फ्रेम. अगर डेली है, आर्ली पे देखूँ तो आर्ली पे भी वही सिचुएशन है. यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे शॉर्ट कॉल दे रहे हैं, यहाँ पे बाय कॉल. ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक तो क्रॉस ओवर पॉजिटिव, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉजिटिव और इंक्रीज हो रहा है. अब नाउ इज डिक्रीजिंग, तो प्रॉब्ली एन एग्जिट कॉल. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू यूज इट not by crossovers only, but by the distance they have amongst themselves and how that distance is changing over a period of time. So that is it from this lesson, and you must make sure that you follow this like religion, कि अंधाधुंध एक इंडिकेटर को पकड़ के ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर सिर्फ इंडिकेटर्स पे ट्रेड करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट गैम्बलिंग. ठीक है, कि बिल्कुल आंखें बंद करके गाड़ी चलाने वाली बात है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप योर बेसिक्स राइट, यू कीप योर प्राइमरी इंफॉर्मेशन राइट विच इज़ प्राइस, एंड फॉलो क्या कहते हैं, indicators only as supplementary tools and nothing else. ठीक है, as a task make sure you go through these three things: adding divergence to your price action trading strategy. This you can get on YouTube, and these two chapters you can easily find on the book जो शेयर हुई हुई है मार्टिन फ्रैंक की, जो पिछली दफ़ा भी हमने यूज़ की थी, विच इज़ चैप्टर 13 and 14, जिसका इस दफ़ा हम लोग देखेंगे. उसमें RSI MACD वाला पोर्शन इज़ अ मस्ट. The remaining is optional. If you do it, that's brilliant. If you have questions, ask me, I will answer them. uh, but it's not something which is mandatory. ठीक है, उसमें जो बाकी सारी चीज़ें हैं, there are tons and tons and tons of indicators out there which you can use, but not all of them will work always, and similarly each of them has a different trading strategy. So if you do use them, make sure you have your full-fledged research on it and you keep asking questions. So as a task, what you have to do is take any 5 shares and like try to find out if these indicators make sense. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, use them with everything else. These are nothing but secondary tools. प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, EMAs को देखना है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को देखना है, ट्रेंडिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को देखना है, एंड देन यू फिगर आउट if you are right or wrong by looking at the indicator. ठीक है, that's it. Indicator की सिर्फ ये जो है. So this is it from this lecture, and see you guys in the next one.